Hello, welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter Probability Distribution. Now in this session, we'll be starting with the new type, that is type number 6. And type number 6 is based on Poisson distribution. Now Poisson distribution is a very important discrete distribution relating to countably infinite sample space. Poisson distribution was applied to describe the probability of deaths in the Pearson army resulting from the kick of horse. When in a given situation, underlying random variable counts the number of events occurring in a given interval of time or space, then it is a case of Poisson distribution. Now definition: a discrete random variable with x is said to follow Poisson distribution with parameter small m if its PMF is given by capital P bracket small x bracket close is equal to capital P square bracket capital X is equal to small x square bracket close. This is equal to e raised to minus m raised to x upon x factorial, comma, for x is equal to 0, 1, 2, dot. It is equal to 0 otherwise. And over here, value of m should be greater than 0. So ये हो गया definition. Now, few important notes for Poisson distribution sums. Note number 1 is, it is written in notation x follows p bracket small m bracket close. That is, x follows Poisson distribution with parameter m, where m is a constant. Then we have second note as, observe that p of x should be greater than or equal to 0 for all x, and summation of x equal to 0 to infinity p of x is equal to summation of x equal to 0 to infinity e raised to minus m raised to x upon x factorial. This is equal to 1. Note number 3 is, mean is equal to E of x for Poisson distribution. This is equal to m, and variance is equal to V of x is equal to m. That is, for Poisson distribution, mean is equal to variance. Fourth note is, some examples where Poisson distribution can be applied are given below. A. Number of defective items found in a large consignment. B. Number of alpha particles emitted by radioactive material during certain time interval. Now we have the fifth note. If n is very large and p is very small, such that n into p is equal to m bracket constant, then calculation of probabilities for binomial distribution can be made using Poisson distribution by taking m is equal to np. So ये सारे important notes है regarding Poisson distribution. So now this were the basic concepts which are required to solve any question which is based on Poisson distribution. And now we'll start with exercise number 8.4, and we say this is nothing but what? Type number 6. Now type number 6 के लिए it is clear that it is a question which is based on what? Poisson distribution. And Poisson distribution के sums पहचानना ये बहुत simple है, because in this either the word used will be Poisson distribution or we will be having e raised to minus का value in the question. अगर e raised to minus का value अगर question में दिया है, मतलब समझ जाना है this is a question which is based on what?
Poisson distribution, and that is type number 6. So type 6 is based on Poisson distribution. So over here we have exercise 8.4 का first question. If x has Poisson distribution with parameter m is equal to 1, then find p of x less than or equal to 1 given e raised to minus 1 is equal to 0.3678. Now यहाँ पे we need to understand क्वेश्चन में m is equal to 1, small m is equal to 1 दिया है. क्वेश्चन में क्लियरली x follows Poisson distribution बोल दिया है. we have value of m, we have e raised to minus 1 का value in the question, ये given है. we need to understand since they say x follows p मतलब Poisson distribution and bracket में m जो है this is the parameter of the Poisson distribution, and ये small m actual में क्या है, this is mean, that is n into p का value है, and this is same as the variance. मतलब for Poisson distribution जो mean का value है वही variance का value है, and that is same as the value of m, and m is nothing but what, n into p. ये हमें समझना है. Now since ये कंडीशन दे दिया है, मुझे उन लोगों ने पूछा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 1 चाहिए. सो व्हाट इज x लेस देन और इक्वल टू 1? कम. द मीनिंग ऑफ दिस इज x का वैल्यू 1 या 1 से कम होगा. अच्छा, तो 1 या 1 से कम मतलब यहां पे आई कैन से p of x इक्वल टू 0 और p of x इक्वल टू 1 आ जाएगा. सो दिस इज इक्वल टू, यहां पे आ जाएगा दिस इज e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल. ये मेरा जनरल फॉर्मूला है फॉर एनी क्वेश्चन विच इज बेस्ड ऑन Poisson डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ m का वैल्यू वी हैव as 1, तो यहां पे e raised to minus 1 हो जाएगा. This gives me the value as into 1 raised to 0 upon 0 factorial plus ये हो जाएगा e raised to minus m, तो m की जगह पे 1 आ जाएगा. m raised to x, तो यहां पे 1 raised to 1 आ जाएगा upon 1 factorial आ जाएगा. So this is equal to e raised to minus 1 into anything raised to 0 is 1, 0 factorial का value is again 1 plus e raised to minus 1 हो जाएगा into 1 raised to 1 मतलब ये 1 हो जाएगा upon this is again 1. So answer for this is e raised to minus 1 plus e raised to minus 1. So ये e raised to minus 1 plus e raised to minus 1 ये मुझे देगा 2 times of e raised to minus 1, and this is same as 2 times of, यहां पे हम लिख देंगे 0.3678 क्योंकि ये e raised to minus 1 का वैल्यू ये है एंड यही यहां पे सब्स्टिट्यूट किया. नाउ वी मल्टीप्लाई दिस, 8 2s ये हो जाएगा 16, 1 कैरी, 14 and 1 is 15, 1 कैरी, 12 and 1 is 13, 1 कैरी, ये 7 और ये हो जाएगा 0 पॉइंट. सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ p of x लेस देन इक्वल टू 1 विच इज 0.7356. सो यहां पे द फर्स्ट क्वेश्चन इज डन. नाउ वी स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. If x has Poisson distribution with parameter m and p of x equal to 2 is equal to p of x equal to 3, then find p of x greater than or equal to 2. Use e raised to minus 3 is equal to 0.0497. Now question में x follows Poisson distribution
with parameter m, ये क्लियर कट दिया है. And in the question they are telling since it is Poisson distribution, तो ये उसका जनरल केस हो गया जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है e raised to minus m m raised to x upon x factorial. So यहाँ पे probability of x equal to 2 is equal to probability of x equal to 3. Yes, ये given है. So according to this we can write e raised to minus m, m raised to 2 हो जाएगा क्योंकि x का वैल्यू 2 आ गया, अपॉन 2 फैक्टोरियल. दिस इज इक्वल टू e raised to minus m हो जाएगा, m raised to 3 हो जाएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल आ जाएगा. यस, मुझे यहां पे इतना समझ आ रहा है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. फर्दर वी कैन से ये 3 फैक्टोरियल यहां पे आ गया और ये 2 फैक्टोरियल यहां पे ही है. दिस इज इक्वल टू इधर m क्यूब है और ये m स्क्वायर अपॉन में आ गया. सो m क्यूब अपॉन m स्क्वायर, तो ये मुझे वैल्यू देगा एज m. एंड 3 फैक्टोरियल इज सेम एज 3 into 2 into 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इज सेम एज 2 into 1. ये और ये कैंसिल. We have 3 is equal to m. So further we can write it as m is equal to 3. And ये मुझे वैल्यू ऑफ क्या मिला? m. See, मुझे एक्चुअल में m नहीं ढूंढना था, बट मेरे पास एक हिंट है क्योंकि क्वेश्चन में e raised to minus 3 का वैल्यू दिया था 0.0497. मतलब ये एक हिंट मिलता है कि मेरा m जो है उसका वैल्यू जो है वो क्या आएगा 3, जो यहाँ पे मिला हमें. सो ये एक हिंट था, बट क्वेश्चन में पूछा गया है देन फाइंड p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2. मतलब मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन या इक्वल टू 2 ढूंढना है. अच्छा, मतलब 2 या 2 से ज्यादा. अच्छा, 2 से ज्यादा कितना, ये हमें पता नहीं है. अच्छा, तो अगर मुझे वो अपर लिमिट नहीं पता है तो मुझे आगे कहां तक जाना है वो पता ही नहीं चलेगा. सो यहां पे मुझे इतना पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होता है, उसमें से मैं p ऑफ x लेस देन 2 जो है, सिंस यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहां पे लेस देन 2 आ जाएगा. 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2. व्हेन आई से 1 minus p of x less than 2, the meaning of this is ये हो जाएगा 1 minus probability of x equal to 0 और probability of x equal to 1 आ जाएगा. 2 इसके साथ काउंट नहीं होगा, 2 इसके साथ जाने वाला है, इसलिए खाली 0 और 1 का प्रोबेबिलिटी आएगा. एंड ये हो जाएगा 1 माइनस, यस, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला के हिसाब से ये हो जाएगा e raised to minus m. m का वैल्यू 3 था तो वो आ गया 3 raised to 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस e raised to minus m, मतलब e raised to minus 3 raised to 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल. सो अकॉर्डिंग टू दिस ये हो जाएगा 1 माइनस e raised to minus 3, तो आंसर फॉर दिस इज 0.0497 into 1, क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 इज 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, इसका आंसर भी क्या है 1 है, प्लस e रेज टू माइनस 3, तो आंसर फॉर दिस इज 0.0497 into 3 रेज टू 1, द आंसर फॉर दिस इज 3 एंड 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है 1. सो ये आ गया. सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, इसको सिंप्लीफाई किया वी गेट 0.0497 प्लस इसको सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3 21, 2 कैरी 27 and 2 is 29, 2 कैरी 12 and 2 is 14, 1 कैरी 0 into 3 तो 0 होगा बट 1 कैरी था तो 1 आ गया एंड ये हो जाएगा यहाँ पे 0 पॉइंट. अब यहां पे ये वैल्यू आएगा 1 माइनस, यस, ये दोनों टर्म को अभी ऐड करना है. सो 7 प्लस 1 ये हो जाएगा 8, 9 प्लस 9 ये हो जाएगा 18, 1 कैरी 8 and 1 is 9, ये हो जाएगा 1 और ये हो गया मेरा 0 पॉइंट. एंड जब इसका डिफरेंस निकाला
तो वी गेट द आंसर फॉर दिस एज 1 माइनस 0 पॉइंट. अच्छा, तो 1 माइनस लिखने से बेटर है वी राइट 1 पॉइंट, डेसिमल के बाद 4 डिजिट, तो इधर भी हम 4 डिजिट लिख देंगे, माइनस 0.1988 एंड इसका डिफरेंस निकाला, वी गेट द आंसर एज 0.8012. This is my probability of x greater than equal to 2. So now ये question number 1 and question number 3 is done. We make a note of this. Now we'll start with the next question, and that is question number 5. A car firm has 2 cars which are hired out day by day. The number of cars hired on a day follows Poisson distribution with mean 1.5. Find the probability that first, no car is used on a given day. Second, some demand is refused on a given day. Given e raised to minus 1.5 is equal to 0.2231. Now again, जैसे ये क्वेश्चन रीड किया, ये क्वेश्चन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये वर्ड आ गया था, एंड e raised to minus 1.5 is equal to 0.2231. ये एक और हिंट देता है कि ये पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम है, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, टाइप नंबर 6 का क्वेश्चन. एंड ओवर हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज गिवन अ कार फर्म हैज 2 कार्स, मतलब यहां पे ये n इज इक्वल टू 2 है. फर्दर दे आर डीलिंग विथ मीन. अच्छा, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मतलब वो डिनोट होता है m से, that is equal to 1.5. and given में e raised to minus 1.5 का वैल्यू दिया है 0.2231. अब यहां पे फर्स्ट सब क्वेश्चन पूछा गया है p of x, that is probability no car is used. so यहां पे लिखते हैं no car is used on given day. So the meaning of this is probability of x equal to 0 पूछा है, एंड ये हो जाएगा e raised to minus m मतलब minus 1.5 into m raised to x मतलब यहां पे m का वैल्यू 1.5, raised to x मतलब 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल है. दिस इज इक्वल टू e raised to minus 1.5 का वैल्यू मेरे पास डायरेक्ट है 1.5 raised to 0, we have the value of that as 1, and 0 factorial we have the value of that as also 1. so इसको सिंप्लीफाई कर दिया, we get the value as 0.2231. so ये हो गया मेरा p of x equal to 0 का वैल्यू. so the first sub question is done. now
Second sub question says we need to find probability that some demand is refused on the given day. तो यहां पे लिखता हूं probability of some demand is refused on some day. अच्छा, सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा कि मेरे पास यहां पे कार जो है वो सिर्फ 2 है. सो इसका मतलब 2 से ज्यादा का अगर रिक्वायरमेंट आता है तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? नाउ आई डोंट हैव एनी अवेलेबिलिटी. इसका मतलब मुझे वो डिमांड को क्या करना होगा? रिफ्यूज करना होगा. द मीनिंग ऑफ दिस इज कि जब 2 से ज्यादा का रिक्वायरमेंट आया एट दैट टाइम ये क्या हो जाएगा? कंडीशन आ जाएगा सम डिमांड इज रिफ्यूज्ड. मतलब यहां पे मुझे लिखना होगा, इनडायरेक्टली मुझे पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2, मतलब प्रोबेबिलिटी 2 से ज्यादा. अच्छा, 2 से ज्यादा कितना ये नहीं पता है. So in that case what we need to do is, हमें टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है वो पता है, माइनस we can find a probability of x less than or equal to 2. Now see, यहां पे सिर्फ ग्रेटर था तो यहां पे लेस देन या इक्वल टू आ जाएगा. सो नाउ ये हो जाएगा 1 माइनस इधर ब्रैकेट, ये हो गया मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस probability of x equal to 1 plus probability of x equal to 2 आ जाएगा. क्योंकि लेस देन 2 का मतलब क्या है? 2 या 2 से कम. अच्छा, तो 2 को भी काउंट करना है, ये उससे कम. सो ये हो गया 2, उससे कम में 1 और उसके कम में 0 भी आ जाएगा. इसलिए 0 प्लस 1 प्लस 2 और इधर बड़ा ब्रैकेट डाला बिकॉज यहाँ पे माइनस साइन. So further we say it is 1 minus, यहां पे आ जाएगा e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 0 upon 0 factorial plus e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 1 upon 1 factorial plus e raised to minus 1.5 into 1.5 raised to 2 upon 2 factorial. So this is equal to, ये हो जाएगा 1 माइनस, यहां पे मैंने करली ब्रैकेट डाला बिकॉज आई कैन सी e raised to minus 1.5 यहां पे भी है, यहां पे भी है और यहां पे भी है. We take that part common. सो यहां पे e रेस टू माइनस 1.5 कॉमन आ गया और इधर एक ब्रैकेट आ जाएगा. क्या बचेगा? 1.5 रेस टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल प्लस 1.5 रेस टू 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1.5 रेस टू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल. एंड यहां पे ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा. एंड नाउ आई विल से यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 2 जो है दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां पे कर्ली ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है यहां पे दिया है 0.2231. सो विल राइट यहां पे एज 0.2231 और इधर ब्रैकेट आ जाएगा एनीथिंग रेस टू 0, ये हो जाएगा 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल का आंसर होता है 1 प्लस 1.5 रेस टू 1 तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 अपॉन 1 प्लस 1.5 का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल तो 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 आ जाएगा. सो ये ब्रैकेट गया. So this is 1 minus 0.2231. In the bracket we have it as 1 plus 1.5
एंड इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा 1.125 एंड वी कैन फर्दर राइट इट एज 1 माइनस ये हो जाएगा 0.2231 इनटू इसको ऐड किया, यस इसको प्रॉपरली ऐड करना है। सो यहां पे 3 नंबर है डेसिमल के बाद तो 1.000 लिखेंगे, 1.500 लिखेंगे, 1.125 लिखेंगे। सो वी हैव द वैल्यू एज 3.625 एंड यहां पे वी कैन से इट इज 1 माइनस दिस इनटू दिस। तो फिलहाल के लिए मैं पॉइंट जो है उसको भूल जाऊंगा। सो फिलहाल के लिए हम पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे, तो ये हो जाएगा 3625 एंड ये हो जाएगा 2231। सो यहां पे 3625 इंटू 2231। सी नॉर्मली आप लोग ये नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो एंड आपको आंसर मिल जाएगा। सो ये तो सबको आता है, बट आई वॉन्ट वन एडिशनल मेथड। सी ये एडिशनल है, मेथड समझा तो एक्सेप्ट करने का, वरना आपको 3625 इंटू 2231 तो आता ही है मल्टीप्लाई करने, तो वो मेथड का यूज करने का, अगर ये मेथड नहीं समझ रहे तो, बिकॉज दिस इज एडिशनल कैलकुलेशन का मेथड। सो मैंने यहां पे क्या किया, इंटू 2231 था ना, तो मैंने इंटू 2 किया। अच्छा ये मुझे क्या आंसर देगा 10, 1 कैरी। ये क्या आंसर देगा 4 और 1 कैरी था तो 5। ये मुझे देगा 12, 1 कैरी तो ये हो जाएगा 7। अच्छा अभी यहां पे ये 2231 है, तो इसके बाद 1 2 3, तो यहां पे मैं 1 2 3 0 लगा दूंगा, मतलब ये मुझे इंटू 2000 का आंसर मिल गया। अभी यहां पे मुझे इधर भी 2 दिख रहा है, मतलब यहां से एक 0 कम कर दूंगा तो ये हो जाएगा 725000, मतलब ये इंटू 200 का आंसर आ गया। अब मैं यहां पे क्या करूंगा 3625 इंटू 3 करूंगा, दिस विल गिव मी द आंसर एज 15, 1 कैरी ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 18, 1 कैरी ये हो जाएगा 10, और लास्ट में एक 0 लगा दूंगा तो इंटू 30 का आंसर आ जाएगा। सो यहां पे इट इज 0, ये हो गया 5, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये हो गया 0, ये हो गया 1 एंड 3625 इंटू 1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पे आ जाएगा 3625। सो यहां पे ये सबको ऐड किया, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 13, 17, 1 कैरी ये हो जाएगा 8। सो यहां पे वी नीड टू अंडरस्टैंड, यस एक बार वापस बताता हूं, ये है डेसिमल निकाल दिया है फिलहाल तो 3625 इंटू 2231, यहां पे एक बार लिख देते हैं 3625 इंटू 2231। तो मैंने क्या किया 3625 इंटू 2 काउंट किया, ये लिखा 7250 आया, और अभी यहां पे ये 2 के बाद 1 2 3 डिजिट, सो यहां पे 3 0 लिख दिए। फिर मुझे दिख रहा है यहां पे 3625 इंटू 2 है, यस उसका आंसर तो मेरे पास 7250 था ही। अभी ये नंबर के बाद मेरे पास 2 डिजिट है, तो यहां पे 2 0 आ जाएगा। सो ये हो गया 7250 और उसके बाद 2 0, उसके बाद 3625 इंटू 3 किया, जिसका आंसर ये मिला, और ये 3 के बाद एक डिजिट है तो यहां पे 0 लिख दिया, तो ये हो गया 108750 एंड उसके बाद 3625 इंटू 1 किया, जिसका आंसर 3625 मिला, एंड अब ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये किया तो ये एक बड़ा नंबर मिला। अब यहां पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब ये हो जाएगा 0.8087375, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0.8087375 सबट्रैक्ट किया
तो मुझे यहाँ पे वैल्यू मिलेगा एस, ये हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 5, दिस इज 9, ये भी 9 हो जाएगा, 9 9 9 9 और ये 0, ये हो जाएगा यहाँ पे 1, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2। सो आंसर में मेरे पास वैल्यू आ जाएगा 0.1912625 एंड जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1913, क्योंकि ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, वी ऐड 1 टू द प्रीवियस नंबर, सो ये आ गया। एंड ये जो आंसर मिला that is for probability that sum of the demand is refused, मतलब basically ये probability of x greater than 2 का value। So with this question is done, we make a note of this। Now we'll start with the next question, and that is question number 6. Defects on a plywood sheet occurred at random with an average of 1 defect per 50 square feet. Find the probability that such a sheet has, first, no defect, second, at least 1 defect, use e raised to minus 1 is equal to 0.3678। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन में कहीं पे भी दिया नहीं है दिस इज अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम, बट सिंस मुझे e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू इज इक्वल टू 0.3678 दे दिया है, मुझे यहां से समझ में आ गया दिस इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का सम। एंड यहां पे वर्ड यूज हुआ है विद एन एवरेज ऑफ 1 डिफेक्ट, एवरेज is same as mean and this is same as m and this value is what, 1 defect per 50 square feet and can I say e raised to minus 1 मतलब e raised to minus m, तो m का वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पे m का वैल्यू 1 आ गया, ये हमें समझना था। एंड यहां से क्लियर आइडिया आ गया कि x फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा ये। सो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू स्मॉल x जो है ये हो जाएगा e रेज टू माइनस m रेज टू x अपॉन x फैक्टोरियल। एंड सिंस द क्वेश्चन सेज प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज नो डिफेक्ट का मीनिंग यहां पे होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0। सो इसका वैल्यू हो जाएगा e रेज टू माइनस m का वैल्यू 1 है, 1 रेज टू 0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, e रेज टू माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 1। एंड यहां पे हम लिख सकते हैं इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नो डिफेक्ट दैट इज x इक्वल टू 0। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.3678। ये कहां से आया, क्योंकि क्वेश्चन में e रेज टू माइनस 1 का वैल्यू प्रोवाइड किया है दैट इज 0.3678। एंड आफ्टर दिस द सेकेंड सब क्वेश्चन ओवर हियर इज प्रोबेबिलिटी that at least 1 defect is there। so at least 1 defect का मतलब है कम से कम एक डिफेक्ट तो है ही, मतलब एक
या एक से ज्यादा डिफेक्ट हो सकता है, ये कंडीशन हमें चलेगा. सो इन दिस केस वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 1 से कितना ज्यादा वो नहीं पता है, तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x. सिंस यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो यहां पे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 आ जाएगा. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 1 का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू सिर्फ 0. लेस देन 1 में खाली 0 आता है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0, यस, उसका वैल्यू ये रहा. सो ये हो जाएगा 0.3678. एंड यहां पे इसका डिफरेंस निकाला, ये हो जाएगा 1.0000 माइनस 0.3678. ये हो जाएगा 10, ये हो गया 9, ये हो गया 9, ये हो गया 9 एंड ये हो गया 0. सो ये हो गया 0. दिस इज 6, दिस इज 3, ये 2 है और ये 2 है. सो आंसर फॉर दिस इज 0.6322 एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, p of x greater than equal to 1 का वैल्यू. सो यहां पे हमारे दोनों भी सब क्वेश्चन हो गए, दैट इज ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. सो नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस. So now, based on the question which we have done in the session till now, yes, you have 2 questions as homework from the same exercise, that is 8.4. Ka question number 4. The number of complaints which a bank manager receives per day follows a Poisson distribution with parameter m is equal to 4. Find the probability that the manager receives first only 2 complaints on a given day. Second, at most 2 complaints on a given day. Use e raised to minus 4 is equal to 0.0183. So यहां पे क्लियरली क्वेश्चन में पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ये बोल दिया है एंड पैरामीटर का वैल्यू m इज इक्वल टू 4 ये दे दिया है. एंड ओनली 2 कंप्लेंट. सो जो फर्स्ट सब क्वेश्चन है उसमें आपको पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 का वैल्यू. एंड जो सेकेंड सब क्वेश्चन है उसमें पूछा है एटमोस्ट 2 कंप्लेंट, मतलब ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2, मतलब 2 या 2 से कम. सो 2 या 2 से कम में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2. ये सबको ऐड करके जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 2 कंप्लेंट्स का कंडीशन. सो ये हो गया एक क्वेश्चन जो होमवर्क में है. एंड नाउ यू हैव द सेकंड क्वेश्चन एज होमवर्क एंड दैट इज ऑफ द सेम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2. इफ x फॉलोज p ब्रैकेट में 1.2 देन फाइंड p of x is equal to 3 given e raised to minus 0.5 is equal to 0.6065. Now this is the question which is printed in your textbook, but ये जो क्वेश्चन है ये इनकरेक्ट वे में प्रिंट हुआ है. सो वी नीड टू मॉडिफाइड दिस क्वेश्चन एंड नाउ आई विल रीड द मॉडिफाइड क्वेश्चन. एंड जो मॉडिफाइड क्वेश्चन है वो कंसीडर करके आपको ये सब सॉल्व करना है. सो द मॉडिफाइड क्वेश्चन इफ x follows p bracket 0.5 comma then find p of x equal to 3 given e raised to minus 0.5 is equal to 0.6065. मतलब सिंपल है, आपको p of x equal to 3 ढूंढना है. गिवन सिंस मुझे x follows p ब्रैकेट में 0.5 दिया है, दैट मींस m का वैल्यू 0.5 है. एंड सिंस आई हैव द वैल्यू ऑफ e raised to minus 0.5, उसका यूज करके हम p of x equal to 3 ढूंढ लेंगे फॉर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन. सो मॉडिफाइड क्वेश्चन कंसीडर करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है. सो दिस आर द 2 होमवर्क क्वेश्चंस एंड नाउ विद दिस we will end the session over here, but before ending I'll say revise the concept of this session because that will help you in the next session as well, because we are going to do further sums based on
the same exercise and similar sums from the miscellaneous part in the next session. Thank you.